اللہ عز و جل کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ جو لوح ہے ہمارے سامنے، یہ قرآن مقدس، یہ وہ لوح ہے جو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا ہے. تو وہ اللہ جو اس قانون کو نازل فرمائے، کیا اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ کا فطور ہے، لیکن اس کے اندر کوئی پاسبلٹی، غلطی کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی، کوئی سمبھوتا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس میں خود قرآن مقدس کا حال بیان کیا گیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اے میرے محبوب تب آپ پہاڑ کی حالت معلوم ہے کیسی دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن مقدس کی وحی کا یہ حال کہ مضبوط پہاڑ، کہ دنیا کی بڑی بڑی مخلوقوں میں سب سے زیادہ مضبوط مخلوق پہاڑ ہی ہے. سب سے زیادہ مضبوط مخلوق کون سی ہے؟ پہاڑ ہے نا. ندیاں بھی اس کی ٹکر نہیں لے سکتی، سمندر بھی نہیں لے سکتے، طوفان بھی اس کی ٹکر نہیں لے سکتے، ہے نا. یہ پہاڑ اتنی مضبوط مخلوق ہے، تو قرآن مقدس نے مہر ثبت لگا دی کہ یہ وہ کلام ہے جو میں نازل کر رہا ہوں، کہ اگر پہاڑ کی سختی پر بھی نازل کیا جاتا تو یہ بھی ریت کے ذرات کی طرح بکھر جاتا. لیکن پھر اس قرآن کو کہاں نازل کیا گیا؟ ہمارے اور آپ کے آقا کے دل پر. نزل، کون سی آیت حضرت؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں اپنے اس کمی کا سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، اور اپنی کمی کا اعتراف کرنے میں کوئی بات بھی نہیں ہے، اس لیے میں آیت کلیئر کرتا ہوں الفاظ سے. میں حافظ نہیں ہوں، آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل فرمایا. تو آپ سوچئے اس پہاڑ کی سختی جس قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے نے اسے برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مضبوطی اور کیسی شان عطا کی اپنے محبوب کو، کہ جس کے لیے ہم سب جان دینے اور لینے کو تیار ہیں. ہمارے ماں باپ جس کی شان پہ قربان، ہمارا خاندان، ہمارا سب کچھ، ہمارا خون جان، ساری جانیں اس پہ قربان. یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یہ جان ہے ہمارے آقا علیہ السلام، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی جان ہے، وہ ایمان کی جان ہے. اگر ان کا ادب و احترام نہیں تو سارے ایمان ختم. ان کا ادب و احترام نہیں تو سارے ایمان ختم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مقدس. اس نے خود کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ملے گی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ فقط اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اعمال کے ساتھ ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے. اور ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سب سے زیادہ عزت، ادب اور احترام. یہ ایمان کی جان ہے. امام اہل سنت نے کیا لکھا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو ہم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ مخلوق میں کسی سے محبت نہیں کرتے. مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا، کس طرح پیدا فرمایا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے. کبھی آپ کے سامنے محفل میلاد ہوئی تو میں آپ کے سامنے میلاد کا تفصیلاً واقعہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کو وہ سمجھ رہا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. 15 منٹ یہ تمہیدی کلمات میں نکل گئے. آپ نے جو میں نے آیت پڑھی تھی اسی حدیث اور آیت میں واپس آ رہا ہوں. وہ آیت یہ تھی کہ آپ کو دین میں مکمل طور پہ داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر؟ مکمل طور پہ کیسے؟ کہ جو اصول ہیں شریعت کے آپ ان پہ عمل کرنے کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریے. جب آپ تھوڑا سا عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ کی توفیق دے گا. اچھا، آج میں جمعے میں تقریر کر رہا تھا اپنے یہاں، تو میں نے لوگوں کو ایک آیت سنائی تھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. قرآن مقدس نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال پتہ ہے، اس کے بدلے جو ملیں گے اللہ کے ہاں وہ کیسے ملیں گے؟ فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل دوسری آیت ہے جی، واہ بالکل ماشاءاللہ. کمثل حبہ، جیسے کہ گیہوں کی بالی، گیہوں کا دانہ. ٹھیک ہے، گیہوں کا دانہ. آپ نے ایک گیہوں کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو نتیجہ معلوم کیا ہوگا حضرت؟ وہاں یہ ہے کمثل سنبلۃ، ہے نا، کہ جیسے کہ گیہوں کی بالی ہوتی ہے نا، اس جیسی مثال ایک بالی، اور ایک بالی پر
नहीं गड़बड़ हो रहा है। सब सनाबिल पूरी आयत पढ़िए, पूरी आयत फाज़ किराम मदद करें। माशाअल्लाह। कम मसले हमबतिन, इधर से मदद हुई, आगे की इधर से मदद हुई। जैसे कि गेहूं का दाना, आपने उस गेहूं के दाने को जमीन में बो दिया। आप जब गेहूं लगाते हैं कैसे लगाते हैं? गेहूं को ही तो बोते हैं, उसी में से तो फिर बालियां निकलती हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कम मसले हब्बतिन, जैसे कि आपने गेहूं का दाना बो दिया। अब उस हब्बा ने क्या किया? हब्बा यानी अरबी में उस दाने को कहते हैं। अब उस दाने ने क्या किया? अम्बतत सबअ सनाबिल, उसने 7 बालियां उगाई। कितनी? और हर बाली पे हजरत आगे पढ़ा तो अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा। हाँ माशाअल्लाह। और हर बाली पर 100 दाने, हर बाली पर। तो एक जो दाना बोया था बदले में कितने आ गए? नहीं जोड़े आपने? 100 into 7 700 कितने? हाँ गुणा कर लीजिए भाई, मल्टीप्लिकेशन। मेरा मैथ कमजोर है लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो एक दाने के बदले में कितने मिले? तो ये कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? कोई मना कर सकता है? नहीं। अभी अगर ये जो राशन देने वाले ऐलान करते हैं कि आज 1 किलो गेहूं फ्री मिलेगा, तो जिन्हें चलना नहीं आता वो भी चल के पहुंचेंगे। सही बात है ना? लेकिन परवरदिगार, और ये वो ऐसा है कि वो झूठ भी बोल सकते हैं और वो धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन कुरान मुकद्दस ने जो इनाम एक बार कह दिया वो टलना नहीं है। तो इस इनाम को लेने के लिए कब कौन राजी होगा भाई? इसको लेने के लिए हमेशा राजी रहिए। आप अगर किसी की मदद करते हैं दीन में, तो उससे अज्र लेने की नियत मत रखिए। आपको अज्र आपका अल्लाह देगा। आप कुरान पढ़ें, नबियों के वाकयात मौजूद हैं। जब जब किसी नबी ने तबलीग की तो नबियों ने यही कहा, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अज्र तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। मेरा जो बदला है, जो इनाम है तबलीग का, कौन देगा? अल्लाह तबारक व तआला। तो लोगों से उम्मीद मत रखिए, आप अपना काम जारी रखिए। आप अपना नेकी का काम जारी रखिए। आपकी नेकी बड़े बड़े जालिमों को दबा देगी, बड़े बड़े जालिमों को दबा देगी। क्योंकि जो चीजें नफरत से नहीं पिघलती वो प्यार से पिघल जाती है। आप सब लोग माशाल्लाह खेती भी करते होंगे। आपने कभी देखा है जब ट्रॉली लगाई जाती है तो ट्रॉली का जो पाइप जोड़ा जाता है तो उसके नीचे कोई पत्थर रख दिया जाता है, तो वो एक बूंद जो टपकती है ना, वो पत्थर के अंदर छेद कर देती है। वो पत्थर रखा रहे हमेशा, तो आप सालों बाद देखिए वो जो हर बार जो बूंद टपकती है तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है। अब आप सोचिए कहाँ पत्थर की सख्ती, कहाँ वो ठोस पत्थर, और कहाँ ये पानी की बूंद। कोई हैसियत है? लेकिन उसने क्यों उसे पिघला दिया? वही मोहब्बत का धीरे धीरे उसने जुबान इस्तेमाल की और उसकी सख्ती को मोम की तरह पिघला दिया। तो आप दीन के लिए पहले मोम बनिए, और जब कोई मोम की हैसियत को आपकी नहीं अपनाता और आपको कमजोर समझता है, फिर वो स्टेज बाद में आती है हजरत, जब पत्थर बना जाता है। क्योंकि 13 साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से तबलीग की, लेकिन जब मोहब्बत कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, तब कौन सी आयत नाजिल हुई? हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। हाँ माशाअल्लाह। अब तलवार उठाओ, अब जंग के लिए मुसलमानों को तैयार करो। ये कब था? जब मोहब्बत नहीं समझी लोगों ने। तो आपको पहले मोहब्बत की स्टेज पर कदम रखना है। आप मोहब्बत इस्तेमाल करिए। आपस में इख्तलाफ होता है, मोहब्बत से सॉल्व करिए। क्या मोहब्बत से इख्तलाफ सॉल्व नहीं होते? होते हैं ना, तो करिए। डायरेक्ट नफरत पे आने की जरूरत नहीं है। कभी भी जीना फलांग कर छत पे नहीं चढ़ा जाता, हमेशा जीने से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, लेडर बाय लेडर, तब जाके आप ऊपर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखिए, जब आपस में कोई बात हुआ करे तो उसे तूल मत दिया करें, झगड़ों को बढ़ाया मत करिए, है ना। अब मैं अपने असली टॉपिक पे आऊँ। एक आयत आपको बताता हूँ। इतनी बात का निचोड़ ये है कि आप अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी जुबान पर ये लिख लें, और जुबान जब बोले तो यही बोले, क्या? कि हमारा दीन हरगिज हमें मजबूर नहीं करता। हमारा दीन, बस हमारा दीन ये कहता है कि सीधी राह अपनाओ। क्या कहता है? हाँ, सीधी राह अपनाओ बस। लेकिन हमारा दीन ये नहीं कहता कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मजबूर बनाया है। मजबूर नहीं बनाया हजरत। हम कोई फिरका जबरिया में से थोड़ी हैं। जबरिया फिरका जो है वो कहता है कि इंसान मजबूर है। हम कहते हैं नहीं, हम जबरिया में से है ही नहीं, है ना। ना हम जबरिया में से हैं, ना हम मुअत्तिला में से हैं। ये एक फिरके हैं बड़े पुराने। बहरहाल जबरिया फिरका ये कहता है कि इंसान मजबूर महज है ना। लेकिन उसका ये कहना गलत है। अगर इंसान मजबूर होता तो जो मैंने आयतें अभी आपको सुनाई कि अल्लाह ने जो इख्तियार दिया, उनका क्या मतलब है फिर? सही बात है ना। तो हमारा ये अकीदा है, अल्लाह ने तो मजबूर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कैपेसिटी और पावर अदा करी, सही और गलत की पहचान की। क्लियर? हाँ, अब बात तो मैं आता हूँ। आप अब ये समझ लें कि हमारा दीन ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे दीन से बढ़कर कुछ
कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इस बात को आप समझिए। आप मालूम है कैसे समझेंगे? आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक मुसीबत आपके ऊपर ना आए। जब इंसान का खुद का घर जलता है ना, तब उसे दर्द महसूस होता है। वरना अभी इनके ऊपर मुसीबत आए तो मैं दांत निकालूंगा, अरे हमें क्या मरने दो। आज मुसलमानों को यही तो हाल है ना। हदीस में तो आका ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, कि मुसलमान आपस में एक इमारत की तरह है। यशुद्दु बादुहु बादा, कि इमारत की ईंटें एक दूसरे से जुड़कर मजबूती से कायम हो जाती हैं। लेकिन हमने क्या किया? ईंट थी उसके भी टुकड़े कर डाले। सारा इत्तेहाद, सारी एकता, सारा यूनियन, यूनिटी सब खत्म। और आज दुनिया हम पे हमले कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कुव्वत को खत्म कर दिया ना। सबसे पहली कुव्वत ईमानी कुव्वत कौन सी? ईमान। हाँ, जब आपने उसी कुव्वत को खत्म कर दिया तो आप बताइए कौन सी कुव्वत काम आएगी? मैं बार बार कहता हूँ अपनी तकरीरों में, लोगों से गुफ्तगू होती है कि आपके पास खूब पैसा है, आपके पास खूब सियासत है, आपके पास खूब आप जिम करते हैं, खूब आपने अपने जिस्म को मजबूत बना लिया। लेकिन ये सारी ताकतें तब काम आएंगी जब आप सबसे बड़ी ताकत यानी ईमान की ताकत को मजबूती से कायम रखें। जब ईमान की ताकत मजबूती से कायम रहेगी तो सारी ताकतें उसका साथ देंगी। और अगर ईमान कमजोर है तो कोई ताकत काम आने वाली नहीं है। क्या इस दौर में मुस्लिम कंट्रीज की तादाद कम है? कम से कम 52 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कम से कम 52 मुस्लिम कंट्रीज है मेजोरिटी में। लेकिन क्या हो रहा है? मुसलमानों का कुछ हो पाया आज तक? फिलिस्तीन की इज्जत किसी ने बचाई? कश्मीर की इज्जत किसी ने बचाई? क्यों? ईमान नहीं है किसी के पास। ईमान के नाम पर कुछ है ही नहीं। ईमान का नाम है, सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम लिख जाए मुसलमान है, लेकिन जो शरीयत के मुताबिक इस्लाम और ईमान था वो नहीं है। अगर वो होता तो आज दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते हम। समझ रहे हैं आप? है ना? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो हमने जो ईमान की जान थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नामूस के लिए बोलना खत्म कर दिया। उन्होंने जो हमें अहकामात दिए, जो शरीयत दी, उसकी अहमियत हमने अपनी जिंदगी से हटा दी। तो आज हमारा ये हाल हो गया। हर चीज़ नामुकम्मल है, पूरी करने के बाद भी पूरी नहीं होती। बहरहाल याद रखें, हमारा दीन और हमारे खुदा की शरीयत, हमारे नबी का लाया हुआ मजहब हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद हमारी दौलत है, इसके बाद हमारे माँ बाप हैं, इसके बाद हमारे खानदान है। सारे रिश्ते दीन के बाद है। पहला रिश्ता क्या है? ईमानी रिश्ता। ईमान सबसे पहला रिश्ता क्या है? ईमान। अगर आप ईमानी भाई हैं तो सबसे बड़ा रिश्ता आपसे मेरा है। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में सगे भाई की तरह हैं। तो इस रिश्ते को तोड़िए मत, इस रिश्ते को मजबूती से कायम करिए। कितनी मशहूर मिसालें हैं, वो वाकया छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। एक वालिद ने मरते वक्त अपने 4 लड़के जो आपस में लड़ते थे उन्हें बुलाया, सबको एक एक लकड़ी पकड़ाई, कहा तोड़ दो, तो सबने तोड़ दी। और जब बंडल बना दिया, कहा तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने क्या कहा? देखो, यूनिटी में पावर है, इत्तेहाद में, एकता में पावर है। जब तुम मिलकर रहोगे कोई नहीं तोड़ पाएगा, और तुम अलग अलग हो गए तो यूं तोड़ दिए जाओगे। तो आप अलग मत रहिए। आपसी इख्तिलाफ सब में होते हैं, लेकिन जब दीन की बात आए तो कंधे से कंधा मिलाकर रखते हुए सही बात है। अपने दीन के नामूस के लिए हमें खड़ा होना है। आसमान से फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे, जंगे बद्र में हुए थे अब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ईमान अब वो नहीं रहा। तुम्हें अपने काबे की हिफाजत खुद करनी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम्हें अपने काबे की हिफाजत खुद करनी है। अबाबील का लश्कर अब नहीं आने वाला, अबाबील का लश्कर अब नहीं आने वाला।